क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म रिलेटिव वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द सेकंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. यस, this is the same question. Yes, this is second equation of motion that you have done. I have written. Yes, we have taken the help of first here at just this point only. हमने यहाँ पे help ली है, okay? And this is second equation of motion. S equal to ut plus half at square. Come to the question. Define the term relative velocity. The velocity of one object related to the second object is called relative velocity. The velocity of A with respect to B equal to VAB equal to VA minus VB. Yes or no? Write the expression for the relative velocity moving with respect to another body when object is moving in same direction. When object is moving in same direction, suppose this is velocity A and this is velocity B. Now this is VA and this is VB, and you need to calculate velocity of A with respect to B equal to, है ना, velocity of A with respect to B. A की velocity of A with respect to B equal to VA minus VB. A की velocity B के respect में, ठीक ना, VA minus VB. जब same direction में जाएंगे तो minus हो जाएगा. When they are in opposite direction, VA and VB comes opposite VB. Okay, when VB comes opposite, it will be minus VB. बोलो, आया ना, minus VB. So VAB equal to VA minus VB. So it would be VA plus VB. इसलिए इसको तेज लगेगा और दो पकड़ने लेकर जाएंगे बहुत तेजी से. क्लियर हुआ? So these are the two terms. ये क्वेश्चन कर चुके हैं जेट प्लेन वाला. Yes or no? Yes. So when two are moving in opposite direction, with same direction VA minus VB, but when they are moving in opposite direction, that will be VA plus VB. समझ में आया? ओके, क्लियर? यस, ये हम कर चुके हैं कल, आज ही करा ना, 1000 किलोमीटर पर आवर. यस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% श्योर फॉर एग्जाम, 100%. Define V equal to U plus AT and V square equal to U square minus 2AS by calculus method. Calculus method. Okay. Define V equal to U plus AT and V square minus U square equal to 2AS by calculus method. So you can write alter this question as define first equation of motion, define third equation of motion. Is it third equation? Yes or no? By calculus method. Yes, calculus method is in your syllabus now and this is new method. ये नई method है, समझ गए? हाँ. मुस्कान, the time I have entered in your class, it is on the board that time. Okay, integration sign is there. Yes. Okay, so let's solve इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मतलब बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. कैलकुलस में दो चीजें हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन. ओके बच्चों, यस, स्टार्ट. लिखिए. यस, वी नो दैट acceleration equal to dv by dt. Acceleration equal to dv by dt. ठीक है ना? देखो, अभी मैंने जब ग्राफिकल मेथड करवाया था, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं इसमें, देखना आप. जब मैंने ग्राफिकल मेथड कराया था तो आपको याद होगा ये vt ग्राफ था. हाँ, जिस समय vt ग्राफ था, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी? बोलो. u. फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? v. इस इनिशियल टाइम कितना था?
अब इस चीज को याद रखना। तो आप देखो, आप जानते हो A इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। इधर ले आओ, A dt इज इक्वल टू व्हाट, dv। क्लियर? A dt इक्वल टू dv, इसको पलट के लिखो dv इक्वल टू A dt, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, राइट? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड within proper limit, proper limit। थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो, प्रश्न आने वाला है। हाँ, ये क्या लिखा है निशा? dv। वेरिएबल क्या है? v, मतलब वेलोसिटी। dv का इंटीग्रेशन, हाँ dv का इंटीग्रेशन। देखो लिमिट लगा रहा हूं, वेलोसिटी स्टार्टिंग कहां से थी, कहां तक गई? लिमिट लगेगी u टू v, ओके, इक्वल टू a। जितने भी मोशन होते हैं सारे के सारे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, हाँ या ना? एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। सारे मोशन हमारे यूनिफॉर्म वाले हैं, एक्सेलरेट कांस्टेंट मोशन वाले हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। dt, हाँ टाइम बताओ, टाइम वेरिएबल क्या है यहाँ पे, a या t? t, क्योंकि dt लगा है ना, बदल रहा है t, d लगा मतलब चेंज हो रहा है t। तो t, टाइम की स्टार्टिंग कहां से कहां तक गया? t तक, ओके। बेटा पढ़े होगे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और लिमिट लगी हो a से b, तो यहां क्या लगा देते हैं? a से b। तो यहां पे dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x आएगा। dx का x आता है, dx का x आता है, तो dv का क्या आएगा? हाँ ठीक ना, तो ये आएगा v। हाँ, लिमिट स्टार्टिंग क्या है, फाइनल क्या है, v इक्वल टू a क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट कहाँ जाता है? बाहर, a बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, लिमिट कितनी? तो कितना t? पहले क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट? लोअर लिमिट, भूल गए आप लोग। अपर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट a, रूल ही होता है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई कॉपी लाया है वो मैथमेटिकल टूल वाली? नहीं लाया हो? अगर मैथमेटिकल टूल की कॉपी लाया हो तो देखो जहां मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करवाए हैं। नहीं लाए? बेसिक मैथमेटिकल टूल, फर्स्ट इज अपर लिमिट, सेकंड इज लोअर लिमिट। मिल गया? यस, हाँ सामने है। यस, सी फर्स्ट इज अपर लिमिट q का स्क्वायर माइनस जीओ का स्क्वायर। हाँ यस, सो पहले कौन सी लिमिट आएगी? अब इधर ध्यान दो, अपर लिमिट। यस, अपर लिमिट में फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u इक्वल टू a, फाइनल टाइम क्या है? t, इनिशियल टाइम क्या? 0। v माइनस u इक्वल टू a इंटू t। फर्स्ट लॉ प्रूफ, नोट इट डाउन बाय इंटीग्रेशन मेथड, कैलकुलस मेथड, v इक्वल टू u प्लस at। कैलकुलस मेथड मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। दो मेथड है आपके सिलेबस में, एक कैलकुलस मेथड, एक ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, अब ये कैलकुलस से कराया। नो, ओनली इन 11th। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ओनली। आप थोड़ा सा कंप्लीट इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ा सा हेजी फील कर रहे होगे हल्का सा, बिकॉज आपने पढ़ा नहीं है, ठीक ना? इंटीग्रेशन में अपर लिमिट पहले आती है, बाद में लोअर लिमिट आती है। डन, रब कर दो, लिख लिया? चलिए नेक्स्ट, थर्ड लॉ प्रूव करना है। देखो, टू प्रूव v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। Now, see, very good. This is
मिस्टेक लिख दिया है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। यू नो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as आया, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू कितना 2as आया, ठीक है ना। ये प्रूव करना है, रफ करना है इसको। हाँ, नाउ ग्राफ स्टार्टिंग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, टोटल टाइम टेकन। मगर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल की गई होगी ना, वो डिस्टेंस क्या होती है, इसका एरिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका एरिया, वीटी ग्राफ का। बट हमको अब एरिया ग्राफ से नहीं जाना है, हमको कोई और चीज से जाना है। चलो देखो, हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की एंट्री हो रही है, सब लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। बोलो यस, dv बाई dt, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं dx का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और dx का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम? देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट dx या ds ले लो, s ले लो, s ds ले लो, ds चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या किया, dv अपॉन dt तो जो का त्यों बना हुआ है, ये देख लो, dv बाई dt, देख गया, ds का ऊपर ds का नीचे। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, आगे समझ रहे हो? यस, कर दिया मल्टीप्लाई। इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में? नहीं पड़ेगा, मगर एक फायदा हो जाएगा। ds अपॉन dt को क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। गुड। तो a इज इक्वल टू dv बाई ds इंटू कितना, आई को a v, क्या v आया ना। नाउ एक्सेलरेशन, ds को ऊपर उछालो, क्या आ गया यहाँ पे, a इंटू ds इक्वल टू, क्या मैं इसको vdv लिख दूं, चलेगा ना? हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद इन प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद इन प्रॉपर लिमिट। बोथ द साइड, ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है। चलिए, यस, a इंटीग्रेशन a ds, a कांस्टेंट है, ds वेरिएबल, ds क्या है, वेरिएबल, s वेरिएबल होगा, a ds इक्वल टू v dv, c v इंटीग्रेशन v dv, ठीक है ना। यस, ds मतलब डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी, s1, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी, s2। लोगों ने x0 लेके रखा है, s0 और s लेके रखा, अपन s1 s2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। s1 से लेके s2, वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, स्टार्टिंग वेलोसिटी u, वेरी गुड, फाइनल वेलोसिटी v, ओके। हाँ, a कांस्टेंट बोलो, हाँ a कांस्टेंट बाहर, अंदर केवल क्या, ds विद इन द लिमिट s1 टू s2, ऊपर लिख रहा हूं, a कांस्टेंट बाहर, ds अंदर विद इन द लिमिट s1 टू s2, within the limit s1 to s2, okay. Now yes, v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है। अच्छा, x का इंटीग्रेशन x dx बोलूंगा तो क्या होगा, अरे dx x का क्या होगा, रॉन्ग, 0 मार्क्स, क्या होगा, x का इंटीग्रेशन, भूल गए, कल पढ़ाया, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, हाँ या ना। तो हियर x की पावर 1 तो ऑलरेडी है,
कांस्टेंट है, अंदर क्या बैठा है v का स्क्वायर, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, सही है। चलिए a, हाँ फुट करिए, अपर लिमिट क्या s2 माइनस s1, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को अपन तो s ही बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, s तो ही बोलते हैं इक्वल टू 1/2 अपर लिमिट काय का स्क्वायर v का स्क्वायर माइनस काय का स्क्वायर u का स्क्वायर, यस a इनटू क्या लिख दिया इसको s, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s, क्लियर है ना, यस क्योंकि वन डायमेंशन मोशन है तो s चलेगा, इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस ये 2 इधर चला गया, क्या हो गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, कहो हाँ, ये माइनस u स्क्वायर यहां आएगा, आंसर कितना आएगा u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू कितना v स्क्वायर, फाइनलाइज द आंसर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बाय कैलकुलस मेथड। क्लियर नॉट क्लियर?